संसद के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विपक्ष के लोग तीखे से तीखे सवाल पूछे, लेकिन सरकार को जवाब देने का मौका भी दें ताकि आम जनता तक सरकार की आवाज पहुंच पाए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं आशा करता हूं सभी को वैक्सीन का एक डोज लग गया होगा। सभी सदन वाले और अन्य लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहें। वैक्सीन बाहु पर लगती है तब आप बाहुबली बन जाते हैं। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं, इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया से बात की और कोरोना और वैक्सीनेशन पर भी बात की। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है और उससे भी जरूरी है वैक्सीन लगवाना। तो प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन पहुंचे और मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। आशा करता हूं कि आप सबका वैक्सीन का कम से कम एक डोज लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी आप सब मित्रों से प्रार्थना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्रार्थना है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। अब ये वैक्सीन जो है बाहु पर लगती है और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहु आइटम नंबर 1 महासचिव आंध्र प्रदेश श्री मद्दिला गुरुमूर्ति। From the Minister of Parliamentary Affairs informing me that Sri Piyush Goyal, Minister of Commerce and Industry and Consumer Affairs, Food and Public రీత్యా నెలకొల్పబడిన భారత సంవిధానం పట్ల యథార్థమైన భక్తి విశ్వాసములు కలిగినయు భారతదేశపు సర్వసత్తాక అధికారమును అఖండతను సమర్థించదనియు. second term member of our house. He comes with a political career spanning more than 3 decades and he has got wide-ranging ministerial experience. He held several portfolios such as mines, new and renewable energy, power, finance, corporate affairs, coal, railways, as a minister in the Union Council of Ministers. To his credit, he has taken a lot of initiatives regarding safety of railways, and also he is also recipient of the 4th annual Carnot Prize in 2018 in recognition of his spearheading path-breaking transforms. I personally feel that this House will surely be benefited by his rich political and administrative experience. His cordial and cheerful nature would further help him in discharging his duties as the leader of the House efficiently. I would also like to take this opportunity to place on record the remarkable contribution made by Sri Tawarchand Gehlot, Governor of the State of Karnataka and former leader of this House, in enriching the quality of debates in the House with his knowledge and expertise and in ensuring the smooth functioning of this House. Oath or affirmation. Sri Abdul Wahab,
I, Abdul Wahab, having been elected a member of the Council of States, do swear in the name of God that I'll bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Abhinandan. Honorable members, since we met last in March 2021, two of our colleagues, Dr. Raghunath Mahapatra and Sri Raju Satav, 10 of our former members, namely Professor N.M. Kamble, Sri Bhagavati Singh, Sri Belihari Babu, Sri Ajit Singh, Sri Matang Sinha, Sri Jitendra Bhai Labshankar Bhatt, Dr. Ramendra Kumar Yadav, Ravi, Sri Jagannath Prasad Pahadia, Srimati Shanti Pahadia, and Sri Dilip Kumar, our popular cine personality, originally known as Yusuf Sarwar Khan, and Sri Milka Singh, the legendary track and field sprinter, have passed away. Dr. Raghunath Patra passed away on the 9th May 2021 at the age of 78 years. Born in March 1943 at Sasan Padia in Puri district of Orissa, in a family of sculptors, Dr. Raghunath Mahapatra had his education at Padia in Puri town of Odisha. An architect and sculptor, Dr. Mahapatra was initiated into sculpting at the tender age of 8 years by his grandfather, a sculptor who worked with the royal family of Puri for upkeep of Sri Jagannatha temple. Though he did not get any formal training in sculpture, his craftsmanship was such that he was revered as an encyclopedia in the field of sculpture. The uniqueness about his craft was that he never used machines for sculpting, but chose a chisel and hammer only to create several masterpieces. A genius in the world of sculpture, Dr. Mahapatra served as a senior instructor and superintendent in the Handicraft Training and Designing Center, Government of Odisha. He was the recipient of several prestigious awards and in recognition of like Padma Shri in the year 1976, Padma Bhushan in the year 2001, Padma Vibhushan in the year 2013. Dr. Raghunath Mahapatra was a nominated member of this House from July 2018 till his sad demise. In the passing of Dr. Raghunath Mahapatra, the country had lost a legendary craftsman and a sculptor for excellence. Sri Raju Satav passed away on 16th May 2021 at the age of 46 years, very sad. Born in September 1974 in Pune, Maharashtra, Sri Raju Satav was educated at Ferguson College and ILS Law College, Pune. An agriculturist, Sri Satav served as the chairman, Agriculture and Animal Husbandry Milk Development Committee, Jilla Parishad Hingoli from 2007 to 2009. He started his legislative career as a member of the Maharashtra Legislative Assembly from 2009 to 2014. कि आप सबका वैक्सीन का कम से कम एक डोज लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी आप सब मित्रों से प्रार्थना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्रार्थना है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। अब ये वैक्सीन जो है बाहु पर लगती है और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहु पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। आगे भी बहुत तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये पैंडेमिक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को
माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्री परिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री महोदय का प्रधानमंत्री जी परिचय करना चाहते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखें। ये उचित नहीं है, आप सदन की परंपरा गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर विराजे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की सूची सदा पटल पर रख सकते हैं। मैं पटल पर रखता हूं। निधन संबंधी उल्लेख अच्छा हो, आप निधन संबंधी उल्लेख पर भी इसी तरीके से सदन में हल्ला करें। ये अच्छी परंपराएं मत डालिए आप। माननीय सदन के नेता, आप समझाइए इनको अच्छी परंपरा। निधन संबंधी उल्लेख आप बैठाइए इनको अपनी अपनी सीटों पर। ओबीसी बिठाइए ना आप। माननीय सदस्य, आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, अच्छी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। ये देश देख रहा है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लेकिन आपकी इस तरीके की कार्रवाई कतई उचित नहीं है और न्यायपूर्ण नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, निधन संबंधी उल्लेख। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे 40 पूर्व साथियों के निधन के संबंध में सभा को सूचित करना है। श्री स्कारिया थॉमस 6ठी और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने केरल के कोट्टायम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री थॉमस का निधन 74 वर्ष की आयु में 18 मार्च 2021 को कोची में हुआ। श्री हरि नारायण प्रभु 10वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने गोवा के पणजी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे इससे पहले 2 कार्यकाल के लिए गोवा, दमन और दीव विधानसभा के सदस्य और गोवा विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने गोवा, दमन और दीव सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया।
श्री हरीश नारायण प्रभु का निधन 85 वर्ष की आयु में 20 मार्च 2021 को पणजी में हुआ। श्री मुख्तार अनीस जी 11वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सीतापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री अनीस ने 4 कार्यकाल तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में उप मंत्री के रूप में भी कार्य किया। मुख्तार अनीस जी का निधन 77 वर्ष की आयु में 30 मार्च 2021 को लखनऊ में हुआ। श्री श्यामाचरण गुप्ता ने 14वीं और 16वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश के बांदा और इलाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री गुप्ता वित्त, अधीनस्थ विधान और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समितियों के सदस्य थे। उनका निधन 76 वर्ष की आयु में 9 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में हुआ। श्री दिग्विजय सिंह 7वीं और 8वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने गुजरात के सुरेंद्र नगर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री सिंह